الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما. اصل بات یہی ہے کہ تم سب کا معبود برحق صرف اللہ ہے، اسی کے سوا کوئی پرستش کے قابل نہیں، اس کا علم تمام چیزوں پر حاوی ہے. كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق وقد آتيناك من لدنا ذكرا. اسی طرح ہم تیرے سامنے پہلے کے گزرے ہوئے حالات بیان فرما رہے ہیں اور یقیناً ہم تجھے اپنے پاس سے نصیحت عطا فرما چکے ہیں. من اعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. اسی سے جو منہ پھر لے گا وہ یقیناً قیامت کے دن اپنا بھاری بوجھ لادے ہوئے ہوگا. قیامت کے روز جو بھی دنیا کے اندر بوجھ لادے ہوئے ہوگا، یعنی کہ گناہوں کا بوجھ جو ہے وہ لادے ہوئے ہوگا. اور گناہوں کا بوجھ ایسے ہوگا کہ جو بے نمازی ہے، نماز نہیں پڑھتا، عبادت نہیں کرتا، اللہ کی راہ میں جو ہے صدقہ و خیرات، یہ ہر کام جو ہے نہیں کرتا، تو صرف اس کے گناہ جو ہے اس کا بوجھ اتنا ہوگا کہ وہ بوجھ اٹھانے کے قابل نہیں ہوگا. اور جیسے قبر پرستی ہو، تاجیہ پرستی ہو، فاتحہ درود ہو، یہ بھی کام ہے، یہ سب ہر کام میں جو ہے اس میں سب شرک ہے. یہ سب جو ہے شرک کی طرف لے کے جاتے ہیں. جیسے کہ اللہ سے دور کرتے ہیں سب کام، اللہ سے دور ہو جاتا ہے انسان، اللہ سے دور ہو جاتا ہے. اللہ کو صرف کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، سب کہتا ہے کہ ہاں اللہ ہے، لیکن شرک جو ہے ایسا اس کے دل و دماغ میں جو ہے بیٹھ جاتا ہے کہ اسے جو ہے اللہ اور رسول کے جو باتیں ہیں وہ جو ہے اس کے دماغ میں نہیں بیٹھتی. اور کتنا بھی بولو تو سامنے ہاں کریں گے، لیکن اپنا کام اپن کریں گے، پیچھے اپنا ہی کام کریں گے. قبر کی عبادت گناہ عظیم ہے. قبر کی عبادت، سجدہ کرنا، قبر پہ سجدہ کرنا، سب یہ کیا ہے؟ شرک ہے. سب سے بڑا شرک، یہ اللہ اس کو پسند نہیں کرتے، سب سے بڑا شرک ہے. تو اثر الرسول کو نہیں دکھایا گیا، جس سے ظاہری طور پر روحانی برکت کا مشاہدہ بھی کیا گیا. اس کے باوجود اس کی پیروی نہیں کی گئی، اسی لیے کہ وہ شرک کا ذریعہ بن گیا. انسان جو ہے کہ ایک دم شرک کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، کہ اس کو شرک کے سوا کچھ نظر نہیں آتا. اب جو بھی کام، ابھی کچھ بھی کام ہو، عبادت، جیسے گئے قبر پرست گئے، قبر کی جو ہے سجدہ کرے، قبر سے مانگے، قبر والے سے مانگے، درگاہ والے سے مانگے،
ये सबसे बड़ा शिर्क है। ये इंसान के दिलो दिमाग में बैठ जाता है। अभी उससे अच्छी बात, कुरान की बात, वो समझ में नहीं आती, वो समझ में नहीं आती। कितना भी उसे समझाओ वो हाँ हाँ करे, उसके बाद में उसका काम वही करे। तो अल्लाह ताला ऐसे गुनाहगारों को जो कह रहे हैं कि इनका बोझ जो है ऐसा होगा कयामत के रोज कि ये बोझ से जो है इतनी आंखों में जो आंसू भी आएंगे, बहेंगे आंसू, इतनी मतलब तकलीफ होगी, बदन पूरा टूट जाएगा। और एक बात क्या है, दुनिया के अंदर इंसान जो है, इंसान यहाँ पर जवान होता है, बूढ़ा हो जाता है, मर जाता है। जब बूढ़ा हो गया, मर गया, तो आदमी सोचता है बूढ़ा होने के बाद में उधर कौन सा बोझ उठाने को मिलेगा, जो इतना बोझ उठा के आदमी ये हो जाएगा। लेकिन अल्लाह ताला कहते हैं कुरान में कि हम उसको जो है वापस जिंदा करेंगे। जिंदा करने के बाद उसके जो है जितने जिस्म, हर चीज, उसके जो हड्डियों का पोर पोर को जो है बना देंगे अल्लाह ताला, फिर से तैयार कर देंगे और जवान बना देंगे। फिर से उसको नई बॉडी देंगे। जैसे कब्र में आदमी जाके उसकी बॉडी पूरी खत्म हो जाती है, तो वहां पे जो है अल्लाह ताला फिर से बॉडी देंगे, फिर उसको इतनी ताकत देंगे कि उतनी ताकत वो संभाले, बर्दाश्त करे, उसको तकलीफ होवे। अल्लाह ताला कहना है कि उतनी तकलीफ वो बर्दाश्त करना पड़ेगा वहां पर, और इतनी तकलीफ होंगी। अब सोचो, एक बूढ़ा आदमी तो बोझ उठा नहीं सकता, तो अल्लाह ताला उसको वहां पर हर इंसान को जवान, जो बूढ़ा मर गया है उसको जवान करके पैदा करेंगे, जवान बना देंगे, जवान बना देंगे। यानी जिस तरह हमने फिरौन व मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा बयान किया है, इसी तरह अंबियाओ मा सबक के हालात हम आप पर बयान कर रहे हैं, ताकि आप इनसे बाखबर हो और इनमें जो इबरत के पहलू हों इन्हें लोगों के सामने नुमाया करें, ताकि लोग इसकी रोशनी में सही राह इख्तियार करें, सही राह पे आ जाएं, सही राह पकड़ें, सही राह इख्तियार करें। निसा नफीहत जिक्र से मुराद कुरान अजीम है। नसीहत जिक्र यानी नसीहत यानी कि अल्लाह की हर बातों को समझना, हर कुरान की हर बातों को समझना। जैसे एक भी सूरा, एक भी आयत है, जैसे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस में कहते ना, बलियन्नी गो लवाया, एक भी आयत मालूम है दूसरे तक पहुंचाओ। तो उसी तरीके से जो है कि हर नसीहत जो है, समझाना, ये भी एक इबादत है। लोगों को दावत देना, ये भी एक इबादत है। जैसे नमाज पढ़ना, वो भी एक इबादत है। तो अल्लाह ताला जो है नसीहत करना, लोगों को समझाना, ये भी बताते हैं। और कुरान अजीम, जिक्र कुरान अजीम है, कुरान की बातें लोगों तक पहुंचाना, जिक्र अजीम है। इसीलिए जिससे बंदा अपने रब को याद करता, हिदायत इख्तियार करता और नजात व सआदत का रास्ता अपनाता है। इस बातों को पहुंचाने से आप भी पहुंचाइए लोगों को। आपको भी एक आयत मालूम है तो पहुंचाइए, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम पहुंचाइए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पहुंचाइए। सलाम करो, हर इंसान को सलाम करो। आज तो हम सलाम करना ही भूल गए। जब से लॉकडाउन हुआ, जब से हर आदमी जो है हाथ मिलाना भी छोड़ दिया, सलाम दुआ भी करना छोड़ दिया। तो सलाम दुआ भी करना जरूरी है, सलाम पहुंचाना। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है कि सबसे पहले कोई भी आदमी हो, कोई भी इंसान हो, गैर मुस्लिम हो, कोई भी, उससे सलाम करो। सलाम करना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहना है, सुन्नत है। 10 नेकी हम छोड़ देते, सलाम नहीं करते, इसको अरे हमारी इज्जत कम हो जाएगी। हम क्या सोचते, हमारी इज्जत कम हो जाएगी, अरे वो छोटे को क्या सलाम करना, हमारी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन सलाम पहुंचाना भी जो है एक इबादत है। 10 नेकी हम छोड़ देते, ये सोच के 10 नेकी हमारी लाश हो गई, घाटे में हो गए हम क्या सोचते हैं कि नहीं, अरे छोटे को क्या सलाम करना, लेकिन इसमें हमारी 10 नेकी खत्म हो गई। ये सोच लो।
यानी इसी पर ईमान नहीं लाएगा और इसमें जो कुछ दर्ज है इसी पर अमल नहीं करेगा, यानी गुनाह अजीम इसलिए कि इसका नामे आमाल नेकियों से खाली और बुराइयों से पूरा होगा। अगर ये अल्लाह की इबादत नहीं करेगा, अल्लाह के रास्ते पे नहीं चलेगा, कुरान नहीं पढ़ेगा, लोगों की बात को नहीं सुनेगा, नहीं समझेगा, तो उसका जो है इसलिए कि इसका नामे आमाल भी जो है नेकियों से खाली हो जाएगा और बुराइयों से भर जाएगा, जिससे वो बच सकेगा ना भाग सकेगा, ना बचेगा ना भागेगा, ना बच भी नहीं सकता वो। अब दुनिया से चला जाता है इंसान, दुनिया से तो चले गया, तो अल्लाह के पास कैसे बचेगा? अल्लाह जब उसको खड़ा कर देंगे बना के तो कैसे बचेगा? किधर भागेगा? कहाँ जाएगा? कोई रास्ता नहीं, कोई पीर नहीं, कोई पैगंबर नहीं, कोई वली नहीं, कुछ नहीं, कोई नहीं, कोई उसको साथ नहीं देगा। अगर वो और अल्लाह ताला वो भी अल्लाह ताला आगे कुरान की आयतें आगे सूरह ताह में आगे कहते हैं अल्लाह ताला के आवाज भी जो है, जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा बोलने की, जिसको इजाजत होगी वही बोल सकेगा, हर इंसान नहीं बोल सकेगा। अल्लाह ताला जिसको इजाजत देंगे बोलने की वो इजाजत से वो बोलेगा। जैसे अभी गुनाहगार है तो अल्लाह ताला उसको इजाजत नहीं देंगे बोलने की, लेकिन जो नमाजी है, इबादत परहेजगार है, उससे गुनाह हुआ है तो अल्लाह ताला जो है, अल्लाह चाहेंगे तो बुरे आदमी को अगर अल्लाह चाहेंगे तो उसको आवाज देंगे बात करने की, बोलने की, नहीं तो अल्लाह के सामने किसी का आवाज ऊंची आवाज में कोई बोलेगा नहीं, ना बात कर सकेगा। आगे की आयत में है सूरह ताह में कि कुरान सही हदीस को समझना, समझ के पढ़ना और उस पर अमल करना ये बहुत जरूरी है, लाजिम है। अभी हम सोचते हैं कि कुरान कौन उठाएगा, काम पे जाना है, ये है वो है, 2 मिनट लगेंगे, एक आयत पढ़ो, उसके माने पढ़ो और चलते रहो, काम पर चलो, ड्यूटी पर जाओ, एक आयत पढ़ो, एक माने पढ़ो, उसके समझ लो, ड्यूटी पर चलो। तो कुरान लाजिमी पढ़ना है, नमाज लाजिमी पढ़ना है। अल्लाह ताला नमाज के बारे में कहते हैं कि नमाज माफ नहीं है, गुनाह तुम्हारे कोई भी अल्लाह ताला चाहो तो माफ कर सकते हैं, लेकिन नमाज के लिए माफी नहीं। नमाज में अल्लाह ताला यहाँ तक कह दिए सूरह निसा में और कई जगह पे कि जब नमाज पढ़ी जाया करे तो ध्यान नमाज में लगाओ, सही नमाज पढ़ो, खुजू और खुजू के साथ पढ़ो, खुजू और खुजू के साथ, यानी कि अल्लाह के सामने खड़े हो तो नमाज जो है, या तो अल्लाह तुम्हें देख रहा है, दिमाग में रखो, या तो तुम अल्लाह को देख रहे, ये बातें दिमाग में होनी जरूरी है। और नमाज माफ नहीं, नमाज में तुम जा रहे, रास्ते में है, सफर में है, तो भी अल्लाह ताला माफ नहीं कर दिए। सफर में है तो भी तुम्हारे को, जैसे असर की 4 रकातें, जोहर की 4 रकातें 2 पढ़ो, फर्ज 2 पढ़ो, तो 2 रकात आपके लिए माफ है, 2 रकात पढ़ सकते हैं। टाइम मिले तो 4 भी पढ़ना है, तो सफर में जरूरी है पढ़ना। सफर में भी अल्लाह ताला कहते हैं। उसके बाद में जैसे अभी जंग हो रही है, मिलिट्री वाले हैं, लड़ रहे हैं, तो सूरह निसा में भी अल्लाह ताला कहते हैं कि जब लड़ाई हो रही है तो 10 आदमी जो है लड़ो, हथियार उठाओ, लड़ो, 10 आदमी हथियार बाजी में रखो, नमाज पहले पढ़ो, और उसके बाद फिर लड़ने को जाओ, उस आदमियों को जो नहीं पढ़े उनको भेजो, वो 10 आदमी भी नमाज पढ़ लेवे। तो अल्लाह ताला लड़ाई के टाइम पर भी नमाज के लिए माफी नहीं है। और घर में तुम्हारे को जैसे खड़ने नहीं हो रहा है तो बैठ के पढ़ो, बैठने नहीं हो रहा है लेट के पढ़ो, लेट के भी नहीं पढ़ने हो रहा है, आंखों के इशारों में पढ़ो। यहाँ तक अल्लाह ताला ने कहा है कि नमाज किसी के लिए माफ नहीं, हर मुसलमान लोग के लिए, कोई भी मुसलमान हो नमाज माफ नहीं। नमाज लाजिम पढ़ना है और जरूरी पढ़ना है, किसी भी हाल में हो पढ़ना है। अब मैयत का घर है, कोई घर में गुजर गया तो आदमी सोचता है मैं मैयत के घर में हूँ, कैसे नमाज पढ़ूंगा, उसकी के इसमें रह जाता है, वो नमाज नहीं पढ़ता, नमाज छूट जाती है। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि नमाज माफ नहीं है, तुम किसी भी हाल में रहो, नमाज जरूरी है, लाजिम है। शादी में हो तो नमाज
शादी छोड़ो, नमाज को आओ। मर रहा आदमी, कोई मर गया है, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ो। उसका कफन दफन बाद में करो, पहले नमाज। तो अल्लाह ताला हर चीज में जो है, तुम हर चीज छोड़ दो, नमाज लाजिम पकड़ो। नमाज के लिए अल्लाह ताला इतना कहते हैं कि नमाज माफ नहीं है, और एक शिर्क सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह के साथ किसी को शिर्क करार देना, दोस्त बनाना, अल्लाह के साथ मिलाना, ये सबसे बड़ा गुनाह है। ये दो चीज अल्लाह ताला कभी भी माफ नहीं करेंगे। और गुनाह जो भी है अल्लाह ताला चाहो तो माफ कर सकते हैं, शिर्क को कभी भी माफी नहीं है।